మీడియా కోఆర్డినేటర్ కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అతనికి నేను స్వాగతం తెలియజేస్తున్నా. చేతన్ గారు కర్ణాటక నుంచి వచ్చాడు. కర్ణాటకలో ఇచ్చిన గ్యారంటీలు మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేము అని కేసీఆర్ గారు పెద్ద పెద్ద పేపర్ యాడ్లు ఇస్తున్నారు, కోట్లు ఖర్చు పెట్టి. అది అబద్దము అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఇది నిజము అని చెప్పడానికి మా చేతన్ గారు వచ్చారు. అక్కడ ఏమేమైతే ప్రామిస్ చేశామో, ఏం గ్యారంటీ స్కీములు, ఇంటింటికి గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చామో, ఆ కార్డు పోస్ట్ క్యాబినెట్లనే అన్ని అప్రూవల్స్ జరిగినాయి, ఫండ్స్ అలొకేట్ జరిగింది, అన్ని కొన్ని 100% ఇంప్లిమెంటేషన్ అయినాయి, కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్లు నడుస్తున్నాయి. ఒక్కటే రోజులో ఇంప్లిమెంట్ అయిందా కాలేదా అనేది ప్రశ్న కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు 10 సంవత్సరాల నుంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానే ఏం చేసినావో నేను అడుగుతున్నా. 3 ఎకరాల భూమి ఎస్సీలకు ఇచ్చావా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చావా? దళిత బంధు ఇచ్చావా? వాళ్ళకు ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చావా? ఎస్టీలకు 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చావా? ముస్లింలకు 12% రిజర్వేషన్ ఇచ్చావా? ఇంటింటికి ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చావా? ఒక్కసారి అసలు ఇంట్రెస్ట్ మాఫ్ చేస్తానో చేసినవా? నువ్వు కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇచ్చావా? నువ్వు కొత్త పెన్షన్ అన్ని ఇచ్చావా? నువ్వు ఏది ఇయ్యలే. 10 సంవత్సరాలు కూర్చొని ఉన్నావు. మేము ఆడ ఇంకా 5-6 నెలలు కూడా కాలేదు. నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా లేదని క్వశ్చన్ అడగటం కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అన్నావు. నిధులు పెట్టి ఏడబెట్టావు? కాళేశ్వరం డ్యాంలో పెట్టావు. నిజాం హయాంలో నిజాం సాగర్ కడితే ఇప్పటిదాకా చెక్కు చెదరలే. నాగార్జున సాగర్ కట్టాం, శ్రీశైలం కట్టాం, జూరాల కట్టాం, ఇప్పటిదాకా చెక్కు చెదరలే. నువ్వు 1,00,000 కోట్లు పెట్టిన కాళేశ్వరం దిగబడిపోతున్నది, కులబడిపోతున్నది. ఆ నీళ్లు సముద్రం పాలైపోతాయి. నీళ్లు సముద్రం పాలవుతున్నాయి. నిధులేమో అందులో కూలిపోతున్నాయి. నియామకాలేమో నువ్వు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పటిదాకా నింపలే. నువ్వు ఈ మూడుట్లలో అట్టర్లే ఫెయిల్ అయి 10 సంవత్సరాలు అడ్డమైన మాటలు చెప్పి సీటు మీద కూర్చొని ఈ రోజు నువ్వు క్వశ్చన్ చేసే కర్ణాటక గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు మీకు. కర్ణాటకకు నేను అందరికి ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ నుంచి కర్ణాటక ఫోన్ చేయడానికి ₹1 ఖర్చు కాదు. వాట్సాప్ లో కాల్ చేయండి. అక్కడ తెలుసుకోండి, మీరు నిజం తెలుసుకోండి. ఈ దొంగ అబద్దాలు మాట్లాడటంలో ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 కనుక ఈ పేపర్ ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇస్తున్నా మీరు అందరు నమ్ముతారని, మీ ఓటర్ మహాశయులకు నమ్ముతారని అనుకుంటున్నారు. ఓటర్ మహాశయులు అంతా నీలాంటి అమాయకులు, నువ్వు అనుకుంటున్నంత అమాయకులు గారు. కర్ణాటకలో ఆల్రెడీ మనం ఇదివరకు కర్ణాటక కూడా మన హైదరాబాద్ స్ట్రీట్ లోనే ఉండే, గుల్బర్గా ఏరియా మనకే ఉండే. అక్కడ ఇక్కడ చుట్టాలు ఉన్నారు. మనం పిల్లల్ని అక్కడ ఇచ్చాం, అక్కడ పిల్లల్ని ఇక్కడ చేసుకున్నాం. అందరు రిలేషన్ ఉంది కనుక, ఫోన్ ఉంది కనుక ఏదైనా నేను పేపర్ యాడ్ ఇస్తే నమ్ముతారని అనుకుంటున్నామేమో. అందరు ఇప్పుడు నీ పేపర్ చూసిన తర్వాత ఆల్రెడీ కర్ణాటక ఫోన్ చేసి ఉంటారు, వెరిఫై చేసుకుని ఉంటారు. నువ్వు దొంగవు, అబద్దాలు ఆడుతున్నావు అని కూడా తేలిపోయి ఉంటుంది అనేది కూడా చెప్తూ, మరి ముఖ్యంగా చేతన్ గారికి నేను స్వాగతం పలుకుతున్నా. నేను చెప్తే నమ్మరు కనుక నేను కర్ణాటక నుంచి మరీ ఒక యూత్ కాంగ్రెస్ ఆల్ ఇండియా హెడ్ కోఆర్డినేటర్ని ఇక్కడికి రమ్మని మీరు ఒకసారి చెప్పడానికి రమ్మంటే వచ్చినందుకు నేను సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ స్వాగతిస్తూ, మరి एक बार बोलो कर्नाटक में क्या चल रहा है? देखो, ये लक्ष्मण रेड्डी जी ने जो बताया है वो 100% सही है. जो रिसेंटली हमें फैक्ट चेक भी किया है, टीआरएस पीपल केटीआर उनका वो ट्वीट किया तो वो ट्वीट को हम वेरीफाई किया तो बॉर्डर का लोगों को इधर पैसा लेके जाके फेक एक मीडिया बैठ के लेके वैसा करे है. 100% जो हम 5 गारंटी अनाउंस किया है उसमें 4 तो पूरा इम्प्लीमेंट है. 5 जनवरी में प्रोसेस है. वो युवा निधि बोल के है. 4 गारंटी ऑलरेडी रीच भी हो गए हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी सक्सेस रेट. अब बस का गृह ज्योति देखो, गृह लक्ष्मी देखो, और बस का देखो, शक्ति स्कीम और हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. लेकिन टीआरएस का क्या है, अब आने का जो उनको मैसेज हो रहे हैं, समो दे वांट टू मिसलीड द पीपल. उनको कन्विंस करने के लिए नहीं हो रहा है, इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं. इसलिए आप लोग तेलंगाना लोग स्पेशली यूथ और सभी अवेयरनेस कंफ्यूज नहीं होना है. आप सब लोग कन्विंस हुए कि कांग्रेस इस बार जीत रहे तेलंगाना में. आप सब लोग एक होके, जैसा कर्नाटक में हम 136 सीट्स लाए, तेलंगाना में भी हम 80 के ऊपर सीट आए तो 2021 में हम सेंट्रल में कांग्रेस का सरकार बनाएगा. राहुल जी को और सेंट्रल में पूरा हमारा जो ये इधर एमआईएम जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी का बी टीम है. टीआरएस भी सेंट्रल में बीजेपी का बी टीम है. से अगर हम सेक्युलर सभी माइनॉरिटीज, बैकवर्ड, एससी, एसटी सब लोग को लेके जाने वाला पार्टी जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है. कांग्रेस पार्टी की वोट डालना है. क्योंकि अब रिसेंटली हमारे रिपोर्ट देखा हम इधर तेलंगाना में ओबीसी, माइनॉरिटी और बैकवर्ड को हम 2nd क्लास सिटीजन जैसा हमारे गवर्नमेंट ट्रीट कर रहे हैं. अगर कांग्रेस सरकार आए तो
सभी इक्वलों को सब लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म में हम लेके जाते बोल के भरोसा देके, और जो कर्नाटका का स्कीम है वो तेलंगाना में भी इम्प्लीमेंट होता बोल के मैं विश्वास देके सब लोग को धन्यवाद बोल के मैं मेरा बात कर रहा हूँ। आपने उन्हें बुलाया था तो क्या बातचीत हुई, क्या उस केस को लेकर आप उसको मुद्दा बनाएंगे या फिर इलेक्शन के बाद उस केस का क्या करेंगे लक्ष्मण रेड्डी जी? ये जो जलपल्ली में लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, माफिया चल रहा है, गरीब लोगों को सता रहे हैं, तो जो लैंड ग्रैबर्स को जो एक्सपोज करा है, बावजीर उसको कत्ल किया गया है, चेयरमैन इन्वॉल्व है, चेयरमैन के बेटे भी इन्वॉल्व है, और दूसरी चीज है सविता जी का बेटा भी इन्वॉल्व है बोल के वहां सुने आ रहा है। सो उनके भाई मेरे पास आए थे कि भाई ऐसे हमने एक्सपोज करा है, जो डेवलपमेंट चाहिए हमने वो मांगा है, हमने डिमांड करा है, हमने वॉइस उठाया है, ये गरीबी हटाने के लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट करा, डिमांड करा, तो ये मैं इतना, मेरा भाई इतना ही करा, उसमें मेरे भाई को कत्ल किया गया है। तो हमने अभी इलेक्शंस तक हमने यहां फिर मेरे को भी मारने का चांस है, मेरे को प्रोटेक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था उनका भाई, तो हमने प्रॉमिस करा है आपको प्रोटेक्शन देगा और आपके फैमिली को भी हम सपोर्ट करेगा। इलेक्शंस के बाद में भी आपको हम आपके साथ रहेंगे, आपको घर बना के देंगे और आपको पूरे स्कीम्स जितने भी है आपको अप्लाई करके आपके फैमिली को हम प्रोटेक्ट करेंगे करके हमने उनके भाई को और उनके फैमिली को भी मैं प्रॉमिस करा। और अभी हमारा गवर्नमेंट आ रहा है, आते ही वो पूरे जितने भी लैंड ग्रैबर्स है उनके ऊपर इंक्वायरी होगा, सीआईडी का इंक्वायरी होगा, पूरे पीडी एक्ट खोलेंगे, ये पूरे लोगों को जेल में दलाएंगे, जितने भी लैंड ग्रैबर्स है वहां पूरे अंदर ही रहेंगे और पूरा लैंड जितना भी ग्रैब हुआ वो पूरा लैंड वापस लेके वहीं के घर, जिसको घर चाहिए, घर नहीं है, वो लोगों को वहीं घर बना के हम देंगे, ये हमारा कांग्रेस का वादा है। और ये मैं पुलिस को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उनके फैमिली को आप प्रोटेक्शन दे। उनके भाई भी आज सेम मुद्दा उठा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ लैंड ग्रैबिंग हो रहा है, माफिया चल रहा है, वोटर्स को भी डरा रहे हैं, ऐसे पूरा डर बिठा दिए वो जलपल्ली में। वो जो डर से बाहर निकालना है, और डरो मत, हम है, हमारा पार्टी है और पुलिस भी आपके साथ रहेगा। आप डेयरली आओ बाहर, वोट डालो, तो उनको कत्ल किया गया है वो एमआईएम वाले हैं और बीआरएस वाले हैं, ये दोनों पार्टी को हराओ और ये माफिया को बंद करने की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी साथ दो, कांग्रेस को वोट दो, जरूर हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, जय कांग्रेस। वोटर भाइयों और बहनों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 30th के दिन जरूर वोट डालिए। अच्छे आदमी को देखना चाहिए, जो बात पे ठहरता है वैसे आदमी को इलेक्ट करना है। चीटिंग जो झूठ बोलते हैं, झूठ जो पार्टी बोलते हैं, उसको हराना चाहिए। जो चीट करे सो सविता को हराना चाहिए। और जो अभी केसीआर जी ने बीजेपी के साथ है और एमआईएम भी उनके साथ है, ये तीनों एक होके कांग्रेस को आना नहीं करके ट्राई कर रहे हैं कि भाई ये समझो कि भाई ओवैसी और बीजेपी केसीआर एक है। अभी जो सीएम है, आज पेपरों में बहुत ऐड दिया है करोड़ों रुपया खर्चा करके कि भाई कर्नाटका में जो बोले ये नहीं कर रहे, नहीं करे, वो गलत है। आपकी कर्नाटका में रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो जरूर आपके फोन से आप फोन करिए, कर्नाटका में इंक्वायरी कर लीजिए कि भाई कर्नाटका में इंप्लीमेंट करे या नहीं, बजट एलोकेशन करे या नहीं, कैबिनेट अप्रूवल हुआ या नहीं, इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या कितने परसेंटेज हुआ, एक बार चेक करना चाहिए। एक ही दिन में हर चीज इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। खाली बिल पास करे या नहीं, या कैबिनेट अप्रूवल हुआ या नहीं, या अभी फंड्स एलोकेट हुए या नहीं,
प्रोसेस हुआ या नहीं वो देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो झूठ बोल रहा है, झूठा एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो केसीआर को बिलीव मत करो। जैसे सीएम पोस्ट एससी को दे तुम बोला, दिया क्या? 3 एकड़ एससी को दे तुम बोला, वो भी नहीं दिया। और दलित बंधु बोला, वो भी नहीं दिया। डबल बेडरूम बोला, वो भी नहीं दिया। सो जो भी बोला, हर बच्चे को जॉब बोला, एक को भी जॉब अभी तक नहीं आया। और खाली पड़े सो जॉब्स की वो फिल नहीं कर सका। तो पूरे जो भी झूठी है, आज की पेपर में जो आया वो भी झूठ है, चेक करके देखो। और ये 9th 3rd के दिन काउंटिंग होगा, 30th को इलेक्शन होगा, 9th को प्रमाण स्वीकार होगा। उसके बाद में फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये 6 गारंटी को अप्रूव करेंगे और अभी फंड्स एलोकेट करेंगे। इफ रिक्वायर्ड असेंबली भी स्पेशल सेशन भी कॉल करके ये पूरा हम डिस्कशन करेंगे। वो सीएम तो 2 जगह हारने का चांस है और किसी हाल अभी वो पार्टी आने का नहीं है। और दूसरी चीज है, ये बीजेपी वाले जो रेट बढ़ गए हैं, सिलेंडर की प्राइस हमारे कांग्रेस है जब 400 था, अभी 1200 हो गया। बोले तो इतना बढ़ने का रीजन है मोदी है, इधर का केसीआर खेड़ी है। ये दोनों मिलके गरीब लोगों को जीना मुश्किल कर दिए हैं। तो ये दोनों को अकाल देने की जरूरत है। तो बीजेपी के तो उंगली करने के लिए भी ये साउथ इंडिया में चांस नहीं है, इसीलिए कि ये लड़ाई लगाना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है, रूल करना चाहता है। वो सब लोगों को मालूम पड़ गया और ये डिवाइड होने वाले नहीं है। जन पूरा मिलके ही चलने वाले हैं, मिलके वो दोनों पार्टी को अकालने वाले हैं। और अकालने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो महेश्वरम के वोटर लोगों को। थैंक यू। जय कांग्रेस। చేతి గుర్తుకే మన ఓటు, हाथ सिंबल को वोट डालो। एक मेरा First of all, I would like to welcome all press and media people, also the local Congress candidate, senior Congress leaders K. Lakshma Reddy ji, and our Youth Congress media state chairman Shailendra ji, और our DCC चलाराव सर और अमोदी और शिवा और बाकी का कॉन्स्टिट्यूंसी का सीनियर लीडर्स। जो अब मैं तेलंगाना के इंचार्ज होकर 3 साल से काम कर रहा हूँ। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नया वेव चल रहा है। पीपल वांट ए चेंज इन महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी। सभी जगह हमारा यूथ कांग्रेस रिपोर्टर्स और हमारा यूथ कांग्रेस लोग लीडर्स और हमारा कांग्रेस लीडर का भी एक रिपोर्ट है कि इस बार महेश्वरम में हमारा कैंडिडेट के लक्ष्मण रेड्डी जी मोर देन 40,000 लीड से जीतने का चांसेस है। इसलिए हम सभी यूथ कांग्रेस लोगों को आप क्यों कांग्रेस को वोट डालना बोल के मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले कर्नाटका में हमारा इलेक्शन हुआ था बेस्ड ऑन सेम गारंटी स्कीम। जो कर्नाटका में 5 गारंटी था, अब तेलंगाना में हम एक्स्ट्रा एडिशनल है 6 गारंटी का है। जैसा कर्नाटका में गारंटी गवर्नमेंट आ चुके हैं, वैसे ही इन द सेम लाइन वी विल फॉर्म ए गारंटी गवर्नमेंट इन तेलंगाना ऑल्सो। क्योंकि कर्नाटका में जो 5 गारंटी हम बताया था, all out of 5, 4 has been implemented perfectly और वेरी सक्सेसफुल। और अब जनवरी में अब 5वां गारंटी भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन हम सुने इधर लोकल पब्लिक में बोल रहे हैं, केटीआर और टीआरएस लोग बोल रहे हैं कर्नाटक में गारंटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बोल के बोल रहे थे। दैट इज वेरी रॉन्ग। अब कर्नाटका इधर बॉर्डर में ही है, सिर्फ यू कैन रीच कर्नाटका इन 2 आवर्स, 2 घंटे में आते हैं। कहाँ भी पूछो, सभी महिला बस में फ्री जा रहे हैं, वो 100% इम्प्लीमेंट है। गृह ज्योति स्कीम है, करंट फ्री है। गृह लक्ष्मी स्कीम है, पैसा घर को अकाउंट को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है विदाउट सिंगल रुपी करप्शन। डायरेक्ट सभी स्कीम हमारा लोगों को पहुंच रहे हैं। इन द सेम लाइन तेलंगाना में भी 6 गारंटी हम लोग अनाउंस किया है, सब लोग को मालूम भी है। 6 गारंटी कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कैंडिडेट की तरफ से। गारंटी कार्ड में हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी और सीएलपी लीडर बट्टी विक्रमा जी का लेटर सिग्नेचर भी है। दैट शोज हमारा कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी का सिग्नेचर था। इन द सेम लाइन तेलंगाना भी ऐसा ही गारंटी कार्ड सिग्नेचर हुआ है। वी विल प्रॉमिस आवर वर्ड्स एंड विल कीप अप आवर वर्ड्स एंड वी विल से 100% हमारा गारंटी इंप्लीमेंट करते हैं हम विद इन फॉर्मिंग। December 9 को कांग्रेस का गवर्नमेंट इधर फॉर्म हो रहा है। हमारा 6 गारंटी, महालक्ष्मी का स्कीम आपको मालूम है, और रैत भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रम इंड्लू, युवा विकासना और चेयतलू,
और 2 दिन पहले हमारा एआईसीसी प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इधर आके मैनिफेस्टो भी रिलीज हुआ है। मैनिफेस्टो में अदर देन दिस 6 गारंटीज बहुत सारे स्कीम्स है कि मोहल्ला म्युनिसिपल कॉलेज में स्कूल, पब्लिक स्कूल जैसा बोलने का, और हेल्थ के बारे में, और किसानों को ज्यादा और फैसिलिटीज देने के बारे में बोल दिया है। और केसीआर इतना 10 साल से कितना एंटी इनकम से बिल्ड हो रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे, कांग्रेस वाले, बाहर के नेशनल मीडिया लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, सभी इंटेलिजेंसी सर्विस बोल रहे हैं कि इस बार केसीआर को बाय बाय कर रहे हैं। वैसे ही इधर महेश्वरम में टीआरएस कैंडिडेट को भी बाय बाय है, इसका बाय बाय केसीआर, बाय बाय सविता इंदिरा रेड्डी जी। अब के लक्ष्मण रेड्डी जी का जितने इधर ही सीनियर लीडर, पहले भी काम किया सो है, ही सीनियर एक्स एमएलए, और इस बार इनको जीते तो he will be potential in the upcoming government as per his seniority. So इधर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका काम भी हो जाते, स्पेशली हम युवा लोगों को भी, मैं भी एक यूथ कांग्रेस के और मैं भी एक यूथ होने से सब लोग को इन्विटेशन करता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट डाले तो तेलंगाना में डेमोक्रेसी बसते, नहीं तो तेलंगाना में सिर्फ एक फैमिली का गवर्नमेंट चलेगा। इसलिए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र अगर तेलंगाना में सस्टेन होना बोले तो इधर कांग्रेस का गवर्नमेंट आना जरूरी है। कांग्रेस का जो गवर्नमेंट तेलंगाना में आना बोले तो महेश्वरम में के लक्ष्मण रेड्डी जी 40,000 लीड के ऊपर जीतना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों को, युवा लोगों को, और एक मैं मीडिया की तरफ से विनती करता हूँ, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी को, सब अभी 8 दिन टाइम है, अभी 8 दिन आप हमारा पार्टी को दिए तो बाकी का 5 साल पार्टी आप सब लोग को देखते बोलते, मैं विश्वास देके मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आप वोटिंग में इनका सर, अब माई सेल्फ चेतन गोनायक, आई एम नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर फॉर यूथ कांग्रेस। अब नवंबर 30 में हमारा 5 स्टेट का इलेक्शन हो रहा है। अब नवंबर 30 में तेलंगाना में इलेक्शन चल रहे हैं। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा सीनियर लीडर के लक्ष्मण रेड्डी जी कंटेस्ट कर रहे हैं, सीरियल नंबर 50 महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी सीरियल नंबर। आप सब लोग नवंबर 30 को सभी यूथ और सभी महिलाओं, सभी सीनियर लीडर्स, ऑल वोटर इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, एवरीवन कम एंड support for K. Lakshman Reddy and vote for hand symbol on November 30.